Namaste everyone. So students, today we will study about conjugate of a complex number. We will learn how can we find conjugate of a complex number. So let me have a complex number z is equal to a plus iota b. Then its conjugate is denoted by z bar, right? This bar is sign. This is known as bar, right? This is sign of conjugate. And it is obtained by changing the sign of imaginary part of given complex number. So here sign of imaginary part is plus, so its conjugate will be a minus iota b. So student, it's very simple. Conjugate of a complex number find out करना बहुत simple है. Just change the sign of imaginary part of given complex number. For example, if we have a complex number z is equal to 3 plus 2 iota, then its conjugate will be 3 minus 2 iota. Just change the sign of imaginary part of given complex number. I am taking another example. Let me have a complex number z is equal to minus 3 minus 2 iota. Then its conjugate will be minus 3 plus 2 iota. So students, it's very simple. Just change the sign of imaginary part of given complex number and you will obtain conjugate of given complex number, right? So conjugate क्या है और conjugate कैसे find out किया जाता है? It's very simple. Now we come to properties. अब हम बात करेंगे properties of conjugate of a complex number and then we will do some more questions based on conjugate. Okay? So now we will talk about properties. Properties of conjugate of a complex number. Properties. Okay. Properties of conjugate of a complex number. Properties of conjugate of a complex number, right? So one by one I will discuss with you. Okay, the first property is, yes, the first one is if z is a real number, if z is a real number, right, then conjugate of z is z itself. अगर आपके पास z एक रियल नंबर है तो उसका जो कॉन्जुगेट है अगेन वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा. लेट अस सी कैसे. तो स्टूडेंट्स, इट इज गिवन z इज ए रियल नंबर. रियल नंबर इट मीन्स जो z है उसका इमेजिनरी पार्ट इट मीन्स जीरो है. तो इफ वी आर एज्यूमिंग z इज इक्वल टू a प्लस एओटा b, देन इट इज गिवन z इज ए रियल नंबर. दैट्स वाई b विल बी जीरो, इट्स इमेजिनरी पार्ट विल बी जीरो. So therefore here z is equal to a plus 0 iota, right? Now take its conjugate. So its conjugate will be again a minus 0 iota. It means it will be again a. So you can see ये दोनों same है. तो therefore z bar is equal to z. It means conjugate of z is z itself. In case if z is a real number. तो it's very simple. ये आपकी first property थी conjugate की. Okay. Now let us move to second property of conjugate of a complex number. So the second one is, yes, if z is a complex number, if z is a complex number, then conjugate of z is z itself. If z is a complex number, then conjugate of z is z itself, right students? तो let us see कैसे आएगा रिजल्ट. तो ये प्रॉपर्टी कहती है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आप कॉन्जुगेट का फर्दर कॉन्जुगेट फाइंड आउट करेंगे तो आपको वापस आपको वही जो आपका गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है आपको मिल जाएगा. देखिए कैसे. तो उसका प्रूफ, लेट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b. ओके, नाउ यू कैन सी its conjugate will be a minus iota b, right? Again इसका conjugate करिए तो again its conjugate will be a plus iota b. So students, you can see conjugate of z is equal to z. So from here we can write conjugate of z is z itself. तो बहुत सिंपल. ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी थी कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का फर्दर कॉन्जुगेट फाइंड आउट करेंगे तो आपको गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा. ओके, चलिए नाउ लेट अस मूव टू अवर थर्ड प्रॉपर्टी. सो द थर्ड वन इज, ये हमारी सेकंड थी. नाउ वी विल टॉक अबाउट थर्ड प्रॉपर्टी. Yes.
So the third one is, if z is a complex number, if z is a complex number, then ठीक है, यहाँ पे आपके पास फर्दर 3 पार्ट्स आपको प्रूव करने हैं. नंबर 1, a z प्लस जेड बार इज इक्वल टू 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z. 1 बाय 1 हम इसका प्रूव करेंगे इनका. सेकेंड पार्ट हमें प्रूव करना है z माइनस जेड बार इज इक्वल टू 2 आयोटा इंटू इमेजनरी पार्ट ऑफ z. एंड द थर्ड वन इज z इंटू जेड बार इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास 3 रिजल्ट है. तीनों रिजल्ट हम 1 बाय 1 यहाँ पे प्रूव करेंगे. द फर्स्ट वन इज, अगर z आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो फर्स्ट रिजल्ट क्या कहता है कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसके कॉन्जुगेट को ऐड कर दें तो वो आपके पास आ जाएगा 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z के इक्वल. तो देखिए कैसे. सबसे पहले फर्स्ट पार्ट का प्रूफ करेंगे. यस, लेट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b. तो यहाँ से आपको क्लियर है कि a क्या है, रियल पार्ट ऑफ z, एंड b क्या है, इमेजनरी पार्ट ऑफ z. तो रियल पार्ट ऑफ z इज a एंड इमेजनरी पार्ट ऑफ z इज b. ओके, नाउ फाइंड इट्स कॉन्जुगेट. तो z बार विल बी a माइनस आयोटा b. ओके, नाउ इन दोनों को ऐड कर दीजिए. तो फ्रॉम हेयर z प्लस जेड बार विल बी इक्वल टू 2a. एंड व्हाट इज दिस a किसके इक्वल है, रियल पार्ट ऑफ z. तो इट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z. तो स्टूडेंट्स ये आपका फर्स्ट रिजल्ट प्रूव हो गया कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर हम उसका कॉन्जुगेट ऐड करेंगे तो इक्वल आ जाएगा 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z. ओके, नाउ कम टू सेकेंड पार्ट. सेकेंड में आपने क्या करना है, z में से z बार को सब्ट्रैक्ट करना है, इनका डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे. तो a माइनस से 0 हो जाएगा. इट विल बी 2 आयोटा इंटू b. एंड स्टूडेंट व्हाट इज दिस b? दिस b इज इमेजनरी पार्ट ऑफ z. तो वी कैन राइट इट एज 2 आयोटा इंटू इमेजनरी पार्ट ऑफ z. और ये आपका प्रूव हो गया सेकेंड रिजल्ट. तो वेरी सिंपल. ठीक है, दोनों रिजल्ट प्रूव करने बहुत सिंपल है. द फर्स्ट वन क्या कहता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर आप उसका कॉन्जुगेट ऐड कर देंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर z. एंड z माइनस जेड बार इज इक्वल टू 2 आयोटा टाइम्स इमेजनरी पार्ट ऑफ z. एंड नाउ कम टू द थर्ड, z इंटू जेड बार इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. तो स्टूडेंट्स अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, दैट इज z इंटू जेड बार, दैट इज a प्लस आयोटा b इंटू a माइनस आयोटा b. तो ये आपको फॉर्मूला बन गया है a प्लस b a माइनस b का. तो इट विल बी a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. एंड वी नो ये दोनों ही आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है और दो स्क्वायर्स का जो सम है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता. एंड इट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. एंड दिस इंप्लाइज z इंटू जेड बार इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. ये आपका प्रूव हो गया थर्ड रिजल्ट भी. तो तीनों रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने एज ए फॉर्मूला. द फर्स्ट वन इज कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में इसके कॉन्जुगेट्स का जो सम है दैट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z. z minus z bar is equal to 2 iota times imaginary part of z, and z into z bar, that is the product of a complex number and its conjugate is always non-negative. Right students? चलिए now let us move to next property, property number 4. So the fourth one is, yes, if z is a complex number, if z is a complex number, then if z is a complex number, then number 1, इसमें भी आपके पास further parts है. Then number 1, the first one is z1 plus z2 conjugate is equal to z1 bar plus z2 bar. Okay, तो उसमें फर्दर आपके पास 3 रिजल्ट और भी हैं. तो 1 बाय 1 में यहाँ पे लिखती जाऊंगी, हम इसको प्रूव करते जाएंगे. तो सबसे पहले फर्स्ट वाले को प्रूव करेंगे. तो फर्स्ट रिजल्ट क्या कहता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट्स का सम इज इक्वल टू सम ऑफ देयर कॉन्जुगेट्स. मतलब आप 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करके उनका कॉन्जुगेट निकाल लीजिए या उनका कॉन्जुगेट निकाल के उनको ऐड कर लीजिए, रिजल्ट्स विल बी सेम. लेट अस सी, इसका प्रूफ देखते हैं. तो यहाँ पे 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 z2. तो हमें एज्यूम कर लेते हैं लेट z1 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b एंड z2 इज इक्वल टू c प्लस आयोटा d. चलिए लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले. तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, z1 में z2 को ऐड कर देते हैं. तो इट विल बी a प्लस c आयोटा b प्लस d. राइट, और अब इसका फाइंड आउट करते हैं कॉन्जुगेट. तो z1 प्लस z2 बार विल बी
a प्लस सी माइनस आयोटा b प्लस डी, जस्ट साइन चेंज हो जाएगा बस इमेजिनरी पार्ट का, राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास आ गई। नाउ वी कम टू राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में आपने क्या करना है, पहले आपको इन दोनों का कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है और उसके बाद आपने इन दोनों को ऐड करना है। ओके, तो उनका कॉन्जुगेट देख लेते हैं। Z1 बार किसके इक्वल आएगा, a माइनस आयोटा b, एंड Z2 बार विल बी c माइनस आयोटा d, राइट स्टूडेंट्स। नाउ जस्ट सिंपली इनको ऐड करके देखिए क्या इसी के इक्वल रिजल्ट आता है। यस, Z1 बार प्लस Z2 बार इज इक्वल टू, रियल पार्ट्स को ऐड कर लीजिए, a प्लस सी माइनस आयोटा b प्लस डी। तो स्टूडेंट्स यू कैन सी कि ये दोनों इक्वल आ गए हैं। इट मीन्स conjugate of sum of two complex numbers, that is Z1 plus Z2 is equal to sum of their conjugates, right students। तो स्टूडेंट्स ये रिजल्ट क्या कहता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सम का कॉन्जुगेट उनके कॉन्जुगेट्स के सम के इक्वल होता है। ये रिजल्ट टू कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी एप्लीकेबल है। यहाँ पे अगर 2 की जगह 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, इन जनरल अगर आपके पास n कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी आ जाते हैं तब भी आपके पास ये रिजल्ट एप्लीकेबल होगा, ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होगी, राइट। ओके, ना उसी के सेकेंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो व्हाट इज इट सेकेंड पार्ट। यस, द सेकेंड वन इज, यहाँ पे हमने सम की बात करी एंड सेकेंड में आपके पास क्या रहेगा, सब्ट्रैक्शन, डिफरेंस। तो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, Z1 माइनस Z2 बार इज इक्वल टू Z1 बार माइनस Z2 बार। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल वैसे ही सिंपल है बिल्कुल। यहाँ पे आपको ये प्रूव करना है कि टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स के डिफरेंस का कॉन्जुगेट उनकी कॉन्जुगेट्स के डिफरेंस के इक्वल होता है। वहाँ पे एडिशन था, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है। तो वैसे एज्यूम कर लेंगे, लेट Z1 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, Z2 is equal to c plus iota d। तो what will be Z1 bar, a minus iota b, what will be Z2 bar, c minus iota d। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं पहले Z1 माइनस Z2 को, it will be a minus c, वेरी सिंपल, ऐड और सब्ट्रैक्ट करना। अब इसका बार फाइंड आउट कर लेते हैं, इसका कॉन्जुगेट, इट विल बी a माइनस c, माइनस साइन आ जाएगा, माइनस b माइनस d। तो ये तो आ गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के लिए क्या करना पड़ेगा, वी विल फाइंड Z1 बार माइनस Z2 बार। तो चेक करते हैं क्या इसी के इक्वल आएगा। यस, a माइनस सी माइनस आयोटा b माइनस सी b माइनस g। तो स्टूडेंट्स यू कैन सी हमारा रिजल्ट यहाँ पे प्रूव हो गया कि टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स के डिफरेंस का जो कॉन्जुगेट है उनके कॉन्जुगेट्स के डिफरेंस के इक्वल होता है, राइट। तो स्टूडेंट्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। बट एज इन केस ऑफ एडिशन मैंने बात की कि यहाँ पे 3 हो, 4 हो, 5 हो, इन जनरल अगर आपके पास n कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हों तो वहाँ पर ये रिजल्ट वैलिड था। बट इस केस में ये रिजल्ट सिर्फ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए ही वैलिड है कि कॉन्जुगेट ऑफ डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ देयर कॉन्जुगेट्स, राइट। चलिए नाउ लेट अस मूव टू थर्ड पार्ट। इसके थर्ड पार्ट की तरफ देखते हैं क्या है इसका थर्ड पार्ट। यस, सो द थर्ड वन इज, तो यहाँ पे हमने एडिशन की बात कर ली, हमने डिफरेंस की बात कर ली, अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट की। तो थर्ड पार्ट क्या कहता है कि कॉन्जुगेट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, conjugate of product of two complex numbers is equal to product of their conjugates, right। तो यहाँ हमें प्रूव करना है कि टू कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करके उनका कॉन्जुगेट निकाल लीजिए या कॉन्जुगेट्स निकाल के मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो रिजल्ट बिल्कुल सेम आएगा। तो लेट अस सी कैसे। तो लेट वी हैव ए कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, Z2 इज इक्वल टू c प्लस आयोटा d, राइट। So Z1 bar will be a minus iota b, Z2 bar c minus iota d, okay। तो सबसे पहले Z1 इंटू Z2 का प्रोडक्ट करके उसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट करते हैं। तो लेट अस सी Z1 इंटू Z2 क्या आएगा, a प्लस आयोटा b इंटू c प्लस आयोटा d, इट विल बी ac प्लस आयोटा ad। वेरी सिंपल, जैसे आपको फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं बिल्कुल आपने वैसे मल्टीप्लाई करना है दो लीनियर फैक्टर्स को। तो ac प्लस आयोटा ad प्लस bc माइनस bg, इट विल बी ac माइनस bg प्लस आयोटा ad प्लस bc, राइट। तो Z1 इंटू Z2 आपके पास आ गया। अब हम इसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट विल बी ac माइनस bd, जस्ट साइन चेंज हो जाएगा, माइनस ad प्लस bc। तो स्टूडेंट इट्स वेरी सिंपल, ये आपकी होगी लेफ्ट हैंड साइड। हमने दोनों को मल्टीप्लाई करके, ठीक है, कॉन्जुगेट फाइंड आउट कर लिया। नाउ कम टू राइट हैंड साइड। राइट में क्या करना है, आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। एंड स्टूडेंट्स आप चेक कर लीजिए, वेरी सिंपल, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास वापस यही रिजल्ट आएगा। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। तो अगर आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली आपके पास इक्वल आ जाएगा Z1 बार इंटू Z2 बार। आप मल्टीप्लाई करके खुद भी देख सकते हैं, चलिए करते हैं। तो Z1 बार इंटू Z2 बार आ जाएगा a माइनस आयोटा b
सी माइनस आयोटा डी। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास बनेगा ए सी माइनस आयोटा ए डी माइनस आयोटा बी सी प्लस आयोटा स्क्वायर बी डी, आयोटा स्क्वायर -1, तो इट विल बी ए सी माइनस बी डी माइनस आयोटा कॉमन और अंदर बचेगा ए डी प्लस बी सी। तो स्टूडेंट्स यू कैन सी कि Z1 बार इंटू Z2 बार, अगेन आपके पास यही रिजल्ट आ गया। तो इससे प्रूव हो गया कि टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स के प्रोडक्ट का कॉन्जुगेट उनके कॉन्जुगेट्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। राइट स्टूडेंट्स, चलिए इसी रिजल्ट से मैं आगे एक और रिजल्ट यहाँ पे हम देखेंगे, एक रिजल्ट और यहाँ पे आएगा अभी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने यहाँ पे टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स के प्रोडक्ट की बात की। तो एज इन केस ऑफ एडिशन आपके पास 3 कॉम्प्लेक्स नंबर हो, 4 कॉम्प्लेक्स नंबर हो, इन जनरल आपके पास n कॉम्प्लेक्स नंबर अगर है तो वहाँ पर भी यही सेम रिजल्ट एप्लीकेबल होगा। तो इन केस इन जनरल अगर आपके पास n कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, डेट इज Z1 Z2 Z3 अप टू Zn, तो उनके प्रोडक्ट का जो कॉन्जुगेट है उनके कॉन्जुगेट्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो दिस रिजल्ट इज आल्सो एप्लीकेबल फॉर n कॉम्प्लेक्स नंबर्स। राइट, यहाँ से एक और छोटा सा रिजल्ट हम यहाँ पे रिड्यूस करेंगे। लेट ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर सेम, मान लीजिए सारे कॉम्प्लेक्स नंबर सेम है, Z1 इज इक्वल टू Z2 इज इक्वल टू Z3। तो लेट Z1 इज इक्वल टू Z2 इज इक्वल टू Z3 इज इक्वल टू Zn इज इक्वल टू Z, सभी के सभी मान लीजिए Z के इक्वल है। तो लेफ्ट बन जाएगी Z इंटू Z अप टू n टाइम्स बार इज इक्वल टू Z बार अप टू n टाइम्स। राइट, तो Z को अगर हम n टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो Z की पावर n हो जाएगी, ओके, इज इक्वल टू Z बार होल रेज टू पावर n। राइट, तो यहाँ से भी हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया जो कि आगे क्वेश्चंस में भी यूज होगा कि उसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट कर लीजिए या फिर उसका कॉन्जुगेट निकाल के उसकी nth पावर कर दीजिए, रिजल्ट्स विल बी सेम। राइट, ओके, नाउ लेट अस मूव टू इस लास्ट फोर्थ पार्ट की तरफ मूव करेंगे। तो फोर्थ में क्या है, हमें क्या प्रूव करना है। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन की हमने यहाँ पे बात कर ली। नाउ वी विल टॉक अबाउट डिवीजन की हम यहाँ पे बात करेंगे। ओके, नाउ लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट रिजल्ट। सो इन नेक्स्ट रिजल्ट वी हैव टू प्रूव इफ Z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर देन division of conjugate of division of two complex numbers is equal to division of their conjugates. So let us see कैसे। So let we have a complex number Z1 is equal to A plus iota B, Z2 C plus iota D। तो स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, Z1 को, ठीक है, Z1 बाई Z2 पहले फाइंड आउट करेंगे। तो A प्लस आयोटा B अपॉन C प्लस आयोटा D इंटू C माइनस आयोटा D अपॉन C माइनस आयोटा D, जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। ए सी माइनस आयोटा डी प्लस आयोटा बी सी माइनस आयोटा स्क्वायर बी डी, और डिनोमिनेटर में तो आपको पता चल ही रहा है क्या आएगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो आपके पास बन जाएगा ए सी आयोटा स्क्वायर -1 +1 हो जाएगा, ए सी प्लस, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 है, और यहाँ से आप कॉमन ले लेंगे माइनस आयोटा, तो विल बी ए डी माइनस बी सी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। राइट, and now we will find conjugate of Z1 by Z2. तो just change the sign, AC plus BD अपॉन C square plus D square, और ये प्लस हो जाएगा प्लस आयोटा AD माइनस BC अपॉन C square plus D square। राइट स्टूडेंट्स, तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे प्रूव हो गई। हमने किया पहले Z1 Z2 को डिवाइड किया, फिर उसका कॉन्जुगेट निकाला। अब हम राइट साइड करेंगे। राइट हैंड साइड में क्या करना है, दोनों के कॉन्जुगेट्स फाइंड आउट करके फिर उसको डिवाइड करना है। तो लेट अस सी क्या दोनों केसेस में रिजल्ट सेम आएगा। यस, बिल्कुल सेम आएगा। यस, नाउ वी विल डिवाइड। तो यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। तो Z1 बार बाई Z2 बार, सो इट विल बी A माइनस आयोटा B अपॉन C माइनस आयोटा D। ओके, रियलाइजेशन करेंगे, C प्लस आयोटा D अपॉन C प्लस आयोटा D। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन AC प्लस आयोटा AD माइनस आयोटा BC माइनस आयोटा स्क्वायर BD, और डिनोमिनेटर आपके पास वही आ जाएगा C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। राइट, नाउ आयोटा स्क्वायर -1 +1 हो जाएगा, तो इट विल बी AC प्लस BD। ओके, यहाँ से प्लस आयोटा कॉमन AD माइनस BC, और 1 बाय 1 दोनों के नीचे ले आएंगे C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर को। तो स्टूडेंट यू कैन सी दोनों रिजल्ट्स आपके पास सेम आ गए, दैट इज conjugate of division of two complex numbers is equal to division of their conjugates। right, तो टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड करके उनका कॉन्जुगेट फाइंड आउट कर लीजिए, या उनका कॉन्जुगेट्स फाइंड आउट करके उनको डिवाइड कर दीजिए, तो रिजल्ट दोनों केसेस में सेम रहेंगे। तो स्टूडेंट दीज वर प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी
और वी हैव स्टडीड कि हाउ कैन वी फाइंड कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. तो यहाँ पे भी एक दो क्वेश्चन और करेंगे बेस्ड ऑन कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. तो लेट अस सी क्वेश्चन हमारे क्या है. यस, सो our question is find conjugate of 2 plus 3 iota square. 2 plus 3 iota square का हमें conjugate find out करना है. तो स्टूडेंट्स एक मेथड तो ये है कि आप इसको सॉल्व करके पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए. सो इट विल बी 4 plus 9 iota square plus 12 iota, that is 4 minus 9 plus 12 iota, and z is equal to minus 5 plus 12 iota, right? वेरी सिंपल. इसको पहले हमने सॉल्व किया, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया और इसका फिर हम फाइंड आउट कर लेंगे कॉन्जुगेट. तो इट विल बी minus 5 minus 12 iota. वेरी सिंपल. और आप इसको कैसे कर सकते हैं इट्स कॉन्जुगेट विल बी जस्ट साइन चेंज कर दीजिए 2 minus 3 iota square. 2 minus 3 iota square, आयोटा अपने इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज कर दिया. एंड अब इसको सॉल्व करके आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए. तो देखिए आपका आंसर अभी भी सेम आएगा. डेट इज 4 plus 9 iota square minus 12 iota. तो 4 minus 9 minus 12 iota, इट विल बी minus 5 minus 12 iota. तो स्टूडेंट्स यू कैन सी दोनों केसेस में ही आपके रिजल्ट सेम आ रहे हैं. तो आप पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके भी कॉन्जुगेट फाइंड आउट कर सकते हैं, या आपने इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज किया, राइट, और उसके बाद आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट दोनों केसेस में आपके सेम आएंगे. राइट स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड कॉन्जुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज z इज इक्वल टू 2 plus iota अपॉन 3 minus 2 iota. तो स्टूडेंट इन ऑर्डर टू फाइंड कॉन्जुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर वी कैन यूज प्रॉपर्टी. हमने प्रॉपर्टी अभी पढ़ी है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी दैट इज कॉन्जुगेट ऑफ डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज इक्वल टू डिवीजन ऑफ देयर कॉन्जुगेट्स, राइट. तो इस प्रॉपर्टी का यूज हम यहाँ पे कर सकते हैं. तो इट्स कॉन्जुगेट विल बी z बार इज इक्वल टू, ये आपका z1 हो गया, ये z2 हो गया. तो दिस इज इक्वल टू 2 plus iota बार अपॉन 3 minus 2 iota बार, राइट. बार मतलब कॉन्जुगेट ही है. तो वी कैन राइट इट एज 2 minus iota अपॉन 3 plus 2 iota, राइट. नाउ इट्स वेरी सिंपल. कॉन्जुगेट आपके पास आ गया है. z बार इज इक्वल टू 2 minus iota अपॉन 3 plus 2 iota. बट स्टूडेंट्स अभी आप अपने क्वेश्चन का जो आंसर है उसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, आप इसको रियलाइज करके इसको प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. तो रियलाइजेशन 3 minus 2 iota से मल्टीप्लाई, 3 minus 2 iota से डिवाइड. सो इट विल बी 6 minus 4 iota minus 3 iota plus 2 iota square अपॉन नीचे आपके पास बन जाएगा 9 minus 4 iota square. एंड iota square -1 -2, 6 minus 2 4, and this is minus 7 iota, and नीचे बन जाएगा 13. तो 4 by 13 minus 7 by 13 iota, this is your answer, right students. तो हमने यहाँ पे इस प्रॉपर्टी का यूज़ किया. दिस इज डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड हमें इसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों का कॉन्जुगेट्स फाइंड आउट किया मैंने अलग से, डेट इज z1 बार बाई z2. ओके, उसके बाद दोनों को उसके बाद हमारे पास डिवीजन फॉर्म में है तो उसको हम पहले रियलाइज करेंगे और उसके बाद इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, राइट. और हमारा आंसर आ जाएगा. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी का यूज़ किया, विदाउट प्रॉपर्टी का यूज़ किए भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं. लेट अस सी कैसे. तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आप सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको रियलाइजेशन करके, और उसके बाद फाइनली आप बाद में जो इमेजनरी पार्ट है उसका साइन चेंज करके भी इसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट कर सकते हैं. तो या तो आप पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, उसके बाद कॉन्जुगेट फाइंड आउट कर लीजिए, या फिर पहले कॉन्जुगेट फाइंड आउट करके उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज. ओके, नाउ एक और क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे. सो let we have a complex number. Yes, we have to find conjugate of 1 plus iota into 2 minus iota upon 3 plus iota, right. तो इसका कॉन्जुगेट हमने फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स. तो सबसे पहले अगर आप ऊपर देखें न्यूमरेटर में आपके पास टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, और अभी अगर हम डिवीजन की प्रॉपर्टी की बात करें तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन, yes, conjugate of division of two complex numbers is equal to division of their conjugates. और अगर प्रोडक्ट की बात करें तो conjugate of product of two complex numbers is equal to product of their conjugates. तो ये दोनों प्रॉपर्टीज क्वेश्चन में यूज होंगी. सबसे पहले तो क्योंकि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा, आपकी मर्जी है, अगर आप चाहें तो इन दोनों का पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए. आप दोनों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज कर सकते हैं. देखिए कैसे. तो z बार इज इक्वल टू 1 plus iota, ठीक है, जो ऊपर आपके पास न्यूमरेटर में है उसका कॉन्जुगेट अपॉन 3 plus iota, राइट.
अब आपके पास जो न्यूमिनेटर में है दिस इज प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, राइट। तो इस पे हम ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, डेट इज 1 प्लस आयोटा बार इंटू 2 माइनस आयोटा बार अपॉन 3 प्लस आयोटा बार, right, and it will be its conjugate will be 1 minus iota, its conjugate will be 2 plus iota, and denominator का हो जाएगा 3 minus iota, right students, and now it is very simple, आगे कुछ भी नहीं रह गया इसमें, आप बिल्कुल इजीली इसको कर सकते हैं कंप्लीट। सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आ जाएगा यस 2 प्लस आयोटा, यस माइनस 2 आयोटा, माइनस आयोटा स्क्वायर अपॉन 3 माइनस आयोटा, and z1 is equal to just iota square minus 1 plus 1 3 minus iota upon 3 minus iota, right students। तो इट्स वेरी सिंपल, ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल आपके पास बन गया, ठीक है। तो 3 माइनस आयोटा से 3 माइनस आयोटा कैंसिल हो गया और z बार आपके पास आ गया 1 प्लस 0 आयोटा, 1 प्लस 0 आयोटा, राइट स्टूडेंट्स। एंड सपोज अगर आपके पास ये कैंसिल ना होता, सपोज वैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, मान लीजिए आपका आंसर आ जाता 3 प्लस 2 आयोटा सॉल्व करके 3 माइनस आयोटा, जैसे यहाँ पे तो दोनों टर्म्स आपके पास सेम हो गई, कैंसिल हो गया सर, तो 1 प्लस 0 आयोटा आपका आंसर आ गया। बट इन केस अगर आपके पास ऐसे आ जाता तो इसके बाद इसको फर्दर आपने क्या करना पड़ेगा, आपको रियलाइजेशन करके इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आप कन्वर्ट करेंगे, वो आपका फाइनल आंसर होगा, राइट स्टूडेंट्स। So students, today we have studied how can we find conjugate of a complex number. We have studied about properties of a complex number. हमने questions भी करे based on properties. Okay, so try your questions based on conjugate of a complex number. And in the next lecture, we will talk about modulus of a complex number. Right? So students, in next lecture, stay safe, stay healthy. Thank you.